Hello guys, here we are connect to know with our second video। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन टू कैलेट सिलेबस था मैंने उसमें बताया था कि मैं अपनी सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में और पेपर सॉल्व की अप्रोच को लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैंने ये पेपर सॉल्विंग की जो अप्रोच है इसको इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 सब्जेक्ट्स में। तो मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको अप्रोच बताऊंगा कि आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको पहले बताया था कि एक पैसेज आएगा और वो 450 वर्ड्स के आसपास का कुछ होगा। तो आपको उस पैसेज को पढ़ना है। आगे आपको सारा कुछ बता रहा हूँ मैं कैसे उसको पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे एक पैसेज से। तो मैं पैसेज साथ में पढ़ रहा हूँ और आप भी ध्यान से पढ़िएगा। I assume we all believe that bats have experience. After all, they are mammals, and there is no more doubt that they have experience than that mice or pigeons or whales have experience. Bats, although more closely related to us than those other species, nevertheless present a range of activity and a sensory apparatus so different from ours that the problem I want to pose is exceptionally vivid, though it certainly could be raised with other species. Even without the benefit of philosophical reflection, anyone who has spent some time in an enclosed space with an excited bat knows what it is to encounter a fundamentally alien form of life. I have said that the essence of the belief that bats have experience is that there is something that it is like to be a bat. Now we know what most bats perceive the external world primarily via sonar or echolation. Their brains are designed to correlate the outgoing sounds with the subsequent echoes, and the information thus acquired enables bats to make precise discrimination of distance, size, shape, motion, and texture comparable to those we make by vision. But bat sonar, though clearly a form of perception, is not similar in its operation to any sense that we possess, and there is no reason to suppose that it is subjectively like anything we can experience or imagine. This appears to create difficulties for the notion of what it is like to be a bat. We must consider whether any method will permit us to extrapolate to the inner life of the bat from our own case, and if not, what alternative methods there may be for understanding the notion. Our own experience provides the basic material for our imagination, whose range is therefore limited. It will not help us to try to imagine that one has well-being on one's arms, which enables one to fly around at dusk and dawn, catching the insects in one's mouth, or that the perceives the world through echolation. Insofar as I can imagine this, which is not very far, it tells me only what it would be like for me to behave as a bat behaves. But that is not the question. I want to know what it is like for a bat to be a bat. Yet if I try to imagine this, I am restricted to the resource of my own mind, and those resources are inadequate to the task. I cannot perform it either by imagining additions to my present experience, or by imagining segments gradually subtracted from it, or by imagining some combinations of additions, subtractions and modifications. हम लोगों ने ये पैसेज पढ़ा, आप फिर से इस पैसेज को बार बार पढ़िएगा। तो हमारा एक अप्रोच, हम मतलब फर्स्ट हमारा टॉपिक ही है हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पैसेज होगा वो 450 वर्ड्स का होगा और एक 12th स्टैंडर्ड का होगा। 12th स्टैंडर्ड का होगा तो बेसिकली क्लेट का जो एग्जाम पेपर हो रहा है वो आपकी नॉलेज को, आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करना चाहता है, एनालाइज करना चाहता है अकॉर्डिंग टू द 12th स्टैंडर्ड। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपने 12th स्टैंडर्ड किया है तभी आप क्लेट का एग्जाम दे पा रहे हो। तो आपका 12th स्टैंडर्ड तक की लैंग्वेज आपकी कैसी है, आप कितना लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हो, उसके लिए आपको ऐसे पैसेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैसेज बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स से हो सकता है, लाइक टेक्निकल साइंटिफिक टॉपिक्स,
कोई फिक्शनल हो सकता है, कोई नॉन फिक्शनल स्टोरी भी हो सकती है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो पैसेज पूछा गया है उसके बारे में उस चीज की स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। आपको सिर्फ उतनी नॉलेज होनी चाहिए जितना उस पैसेज में दिया हुआ है। आपको वो पैसेज पढ़ना है, उस पैसेज के अंदर ही सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, इसके बियॉन्ड कुछ भी आंसर नहीं दिया होगा। तो बेसिकली एक पैसेज में एक पॉइंट होगा, या कोई एक आर्ग्यूमेंट होगा, या उसमें कोई स्टेटमेंट होगा जो कि पैसेज का जो मेन पॉइंट है उसको या तो सपोर्ट करेगा या काउंटर करेगा। पैसेज जो होता है उसका कोई एक मेन पॉइंट होता है। मेन पॉइंट मतलब जो पैसेज का बेस होता है कि पैसेज किस चीज के ऊपर आया है। जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा था, तो बेसिकली वो बेट्स पे आया था। तो बेट्स पे उस पैसेज में हमको ढूंढना है कि उस बेट्स के लिए उसने क्या मेन पॉइंट यूज किया है। तो उस मेन पॉइंट को जब आपको वो मेन पॉइंट ढूंढना है, और जब आपको मेन पॉइंट मिल जाएगा तो आपको आर्ग्यूमेंट्स और स्टेटमेंट ढूंढने होंगे। कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा, क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, जो मेन पॉइंट को सपोर्ट करे या फिर काउंटर करे। आगे हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, व्हाई डज द ऑथर चूज बैट्स इंस्टीड ऑफ माइस, पिजन और वेल्स टू प्रेजेंट द मेन प्रॉब्लम इन द पैसेज। भाई ऑथर ने सिर्फ माइस पिजन और बैट्स को ही क्यों चुना? वो पिजन, माइस, वेल्स को भी चुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ऑप्शंस हैं क्यों चुना, उसके लिए हम लोगों को मेन प्रॉब्लम सर्च करनी है। पहला ऑप्शन है, बिकॉज बैट्स आर वेरी सिमिलर टू अस एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू इमेजिन व्हाट द माइंड ऑफ अ बैट वुड बी लाइक। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज दे आर मैमल्स एंड पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट मैमल्स हैव एक्सपीरियंस। Third option, because mice, pigeons और whales are more closely related to us than bats are। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो A और C आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे मैं बोल सकता हूँ कि C तो नहीं होगा, A हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि A होगा, मैंने बोला A हो सकता है। ठीक है। Because their habits, behavior, fourth option, because their habits, behavior and sense organs are very different from ours, yet people are willing to believe that they have experience। तो सोचो आप कौन सा आंसर हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है डी। हम लोगों ने ऑप्शन देखा था, because their habits, behavior and sense organs are very different from ours, yet people are willing to believe that they have experience। ऑथर ने फर्स्ट पैराग्राफ में ही स्पेशली बोला था दैट मैं बता देता हूं आपको। हम लोग प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। ऑथर ने फर्स्ट पैराग्राफ में बोला था, बैट्स ऑल्दो मोर क्लोजली रिलेटेड टू अस दोज अदर देन अदर स्पीसीज। तो सी ऑप्शन तो नहीं रहा। नेवरदलेस प्रेजेंट अ रेंज ऑफ activity and sensory apparatus so different from ours that the problem I want to pose it exceptionally vivid। तो आपको सीधा सीधा आंसर यहीं पे मिल गया कि उसने बेसिकली सेंस ऑर्गन्स के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में बोला था, इसलिए वो बेसिकली यही प्रॉब्लम है जो कि एक्सेप्शनली इस टॉपिक को एक्सेप्शनली विविड करती है। ठीक है। ए और सी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, मैंने पहले ही बोला था आपको। तो ना तो ए सही होगा ना सी सही होगा। ठीक है। तो आपका आंसर डी होगा। और अगर हम लोग बी ऑप्शन की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैमल्स के पास ही एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है। तो ये भी एक तरह से आंसर आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा डी। सेकेंड ऑप्शन अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज अबव। ऑथर्स ने मेन पॉइंट क्या डिस्कस किया, जो हमारा मेन क्वेश्चन, जो मैंने पहले बोला था आपको, मेन प्रॉब्लम और मेन पॉइंट आपको सर्च करना है पूरे पैसेज में। तो फर्स्ट ऑप्शन है दैट ह्यूमन विल नेवर अंडरस्टैंड सोनार और इकोलेशंस सिंस वी डू नॉट हैव द बायोलॉजिकल apparatus फॉर इट। ठीक है। बी ऑप्शन, दैट आर इमेजिनेशन इज वेरी वीक एंड अनलेस वी मेक a dramatic effort we will not be able to imagine what it is like to be a bat। C option, that while bats may have experience, it is very difficult for us to understand or describe that experience since our mind and ways of perceptions are different from those of bats। Fourth option, that bats cannot possibly have experience since their sensory organs and ways of perceiving their surroundings are different from how we perceive and experience the world।
सो इसका आंसर आप सोचो क्या हो सकता है, पैसेज को पढ़ो एंड देन इसका आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं वैसे बता दे रहा हूं आपको, इसका आंसर है सी। इसका आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन क्या था, दैट while bats may have experience it is very difficult for us to understand or describe the experience since our mind and ways of perceptions are different from those of bats। ऑथर ने पहले ही इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था उनके सेंसरी ऑर्गन के बारे में, कि उनके सेंसरी ऑर्गन इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो वर्ड को सोनार इक्वलेशन से कुछ अलग ही तरह से समझ सकते हैं, जिसको हम लोग उतना अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, और फिर लास्ट में उसने बताया था इसीलिए बैट बिल्कुल अलग होती है। उसने सेकंड ऑप्शन में भी बोला था, लाइक कंक्लूजन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज लाइक टू बी ए बैट सिंस वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द रिसोर्स ऑफ आवर माइंड। हम लोग उतना नहीं सोच सकते बिकॉज वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है सोनार और इक्वलेशंस में, वो अपने आप को अलग तरह से जज करती हैं, अलग तरह से वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज एन एक्यूरेट। वो क्यों है, बिकॉज ऑप्शन ए ने बोला कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड सोनार बट दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग द वर्ल्ड थ्रू सोनार। हम लोगों को सोनार पता है, हम लोग सोनार जानते हैं कि क्या है, बट हम लोग सोनार को वर्ल्ड के साथ जोड़ के नहीं समझ सकते। ठीक है, बी ऑप्शन में ऑथर ने बोला कि हम लोगों की इमेजिनेशन बहुत लिमिटेड है, कि अगर हम लोग ड्रामेटिक वे में सोचने की कोशिश करें तो हम लोग उसको नहीं सोच सकते। ऐसा नहीं है, पहले भी ऑथर ने बोला है कि हमारी इमेजिनेशन उतनी ज्यादा नहीं है, हम लोग उतना नहीं सोच सकते, बट यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया कि आप सोच ही नहीं सकते हो, आपको ड्रामेटिक वे में सोचना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसीलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बोला गया, इस ऑप्शन डी में बोला कि बैट्स डू नॉट हैव पॉसिबली एक्सपीरियंस। तो ये तो स्टार्टिंग के पैसेज से ही बोला गया है कि वी ऑल बिलीव दैट बैट्स हैव एक्सपीरियंस। तो ये तो इसने यहाँ पे पैसेज के ही मेन पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप दोबारा से अगर ना समझ में आए, दोबारा से समझना है, इसको दोबारा से करने की कोशिश करना। ठीक है, हर चीज का एक अलग पैटर्न होता है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग पैटर्न होता है, हर थिंकिंग का एक अलग पैटर्न होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। जब आपको एक मेन पॉइंट मिल जाता है, आपको जब एक मेन पॉइंट मिल गया तो आपको क्या करना होता है, आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है एक, ये हम लोगों ने बैट्स का एक्सपीरियंस पढ़ा, ऐसे ही कई सारे पैराग्राफ होंगे, पैसेज होंगे, तो आपको उन सब में कुछ वर्ड्स हैं उनको ग्रैस्प करना है, उनकी इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करना है। जैसे सपोज दैट हु, लाइक कौन, किसके बारे में बात हो रही है, व्हाट क्या बात हो रही है, व्हाई क्यों, बात क्यों हो रही है। जैसे हम लोगों ने बैट्स के बारे में पढ़ा, तो वो बात क्यों हो रही है, उनका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, तो हम लोग उनके एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन कोई ऐसा इंसिडेंट दे रखा है कि ऐसा कब हुआ था, कोई डेट दे रखी है, एंड वेयर कोई प्लेस कि कहाँ पे ऐसा हुआ था। तो ये पांच चीज हैं जिनको आपको याद रखना है, लाइक याद इन द सेंस कि आप जब पैसेज को पढ़ोगे तो इन 5 चीजों पे फोकस करते हुए पढ़ना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इवेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, इवेंट का मेन रीजन क्या था। ठीक है, उसका मेन कैरेक्टर कौन था। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो बैट, हु का आंसर होगा बैट, बैट इसका मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो आपको पैसेज की पूरी डिटेल एक तरह से समझ में आ जाएगी। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, जब भी पैसेज में कोई भी पैराग्राफ चेंज होता है तो हो सकता है कि जो स्पीकर है उसका व्यू पॉइंट चेंज हो गया हो, शायद वो बात को कहीं और से कहीं और ले गया हो, या फिर उसने अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हो। लाइक सपोज दैट अगर बीच में हाउएवर, देयरफॉर, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो, अगर ऐसे वर्ड भी यूज हो रहे हैं तो हो सकता है ऑथर का व्यू पॉइंट चेंज हो गया होगा। अब ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप सारे सॉल्यूशंस, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का मेन फोकस करना है। आप जितना, मैंने पहले भी बोला है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जस्ट डू मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। नाउ सेकंड चीज होती है वोकैबुलरी। तो आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक वोकैबुलरी क्या है, आपको वर्ड्स मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, आप मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए उसका, है ना। तो वोकैबुलरी आपकी 2 टाइप से क्वेश्चन से पूछ सकते हैं।
फर्स्ट तो सिंपली पूछेगा कि इसका मतलब क्या है। लाइक सपोज दैट अगर कोई वर्ड चेंज आ गया तो व्हाट डू यू मीन बाय चेंज, ऐसे करके उसका सिनोनिम पूछ सकता है वो, ठीक है। सेकंड वे में क्या आएगा, सेकंड वे में वो आपको पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करेगा, क्वेश्चन करेगा। लाइक सपोज दैट जैसे इसमें अभी क्वेश्चन में आपको आगे इलस्ट्रेशन बताऊंगा, तो वो बोलेगा चेंज, जो चेंज वर्ड है उसका पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग निकलता है। सेकंड चीज वो क्या पूछना चाहता है, एक तरह से वर्ड मीनिंग आपको बताना है, मतलब उसका भाव बताना है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको कंटेक्स्ट, पैसेज के कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है, तो हमेशा उस पैसेज में जो वर्ड है, जिस वर्ड के बारे में वो पूछ रहा है, उससे 2 लाइन पहले और 2 लाइन बाद आप पैसेज को पढ़ो, जिससे आपको उस कॉन्टेक्स्ट का पता चलेगा कि ये जो वर्ड है वो किस सेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे आपको नॉर्मली उस समझ में आ जाएगा, आपको आंसर पता लग जाएगा कि ये क्यों दे रखा है। आप ऑप्शंस पढ़ते जाओगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट करते जाओगे, हाँ कि यार मेरे पास जो सब्जेक्ट है, मतलब मेरे पास जो टॉपिक आया है वो टॉपिक कुछ डिफरेंट है और ऑप्शंस कुछ और बोल रहे हैं, तो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब सपोज दैट अगर मैं बात करूं एक इलस्ट्रेशन की, तो इलस्ट्रेशन में पूछा है व्हाट डज द वर्ड एलियन एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। एलियन का वर्ड का मीनिंग क्या है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इस पैसेज के अकॉर्डिंग, तो इन द कंटेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज एलियन का मतलब क्या हुआ। फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम अनदर कंट्री, बी ऑप्शन अनफेमिलियर डिस्टर्बिंग, सी ऑप्शन फ्रॉम अनदर प्लेनेट, डी ऑप्शन हाइपोथेटिकल और फिक्शनल। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग इसमें से बात करें ना, तो मैं बिना आंसर के इसमें हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं पैसेज को, जो हमने लास्ट चीज पढ़ी थी। पहली चीज फ्रॉम अनदर कंट्री, उसने कुछ कंट्री के बारे में कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। पैसेज को मैं बिना देखे बोल सकता हूँ, पैसेज में किसी भी कंट्री का कहीं कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। सी ऑप्शन फ्रॉम अनदर प्लेनेट, प्लेनेट के बारे में भी नहीं बताया है, कहीं भी किसी प्लेनेट के बारे में बात नहीं हुई है। हाइपोथेटिकल और फिक्शनल, तो बैट्स को उसने एलियन बोला था, तो बैट जो है वो हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, वो फिक्शनल नहीं है, इट इज नॉन फिक्शनल, इट इज रियल, ठीक है। तो हम लोग बी ऑप्शन को ले सकते हैं कि इट इज अनफेमिलियर एंड डिस्टर्बिंग। ये आपको समझ में आया कि अब अगर हम लोगों ने एलिमिनेट ही कर दिया कि वो अनदर कंट्री से नहीं है, अनदर प्लेनेट की बात नहीं हुई है और बैट हाइपोथेटिकल थिंग नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचता है, बी। हम लोगों ने एलिमिनेशन से ही इसका आंसर निकाल दिया, तो आपका टाइम भी सेव हो गया, आपको पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ा और इजिली आपका सॉल्व भी हो गया। ओके, तो नाउ अब आपको क्या है कि पैसेज जब आप पढ़ते हो तो आपको पैसेज की हर एक चीज को रिमेंबर, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप पैसेज को पढ़ते हो तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसमें मेन पॉइंट या मेन प्रॉब्लम क्या डिस्कस हो रही है। जैसे हम लोगों ने भी आंसर सॉल्व किए थे वैसे ही, कि उसमें मेन प्रॉब्लम क्या डिस्कस हो रही है, मेन पॉइंट क्या है उसका, वो आपको ग्रैस्प करना है। अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपका पैसेज वहीं पे 70% सॉल्व हो चुका है, फिर आपको और कुछ जरूरत नहीं है पैसेज को सॉल्व करने के लिए। थर्ड चीज, आपको पैसेज का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ठीक है, और उसमें क्या क्या व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस टाइप से आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप कम से कम दिन में, अगर जब आप इंग्लिश सब्जेक्ट उठाओगे तो कम से कम दिन में 20 से 30 पैसेज को सॉल्व करो, टाइम लिमिट सेट करके। 15 मिनट्स दो, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आपको देना है, 1 से 2 घंटे के बीच में दो, और जितने से ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। सो अब आपको जो मेन चीज है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन के हर वर्ड पे आप अपना अटेंशन दो, क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो और उस पर अटेंशन दो। वैसे तो क्वेश्चन एक कुछ ही रूल फॉलो करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चनर है, जब वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा होता है, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस दे देता है। कुछ डिफरेंस ऐसा होगा, उससे क्या होगा, जब आप पेपर को, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो आपको 2 बार उसकी रीडिंग करो कि उसमें क्या चेंजेस दे रखे हैं। कई बार क्या होता है कि ना, जैसे ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर लाइकली टू एग्री विद, इसका मतलब हो गया कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर इज लाइकली टू एग्री विद, मतलब यहाँ पे कुछ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर दूसरा दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर लाइकली टू मोस्ट एग्री विद, मोस्ट स्ट्रांगली एग्री विद, या फिर मोस्ट लाइकली टू एग्री विद, अगर ऐसे दिया हुआ है तो मतलब देयर इज मोर देन वन ऑप्शन
मोर देन वन ऑप्शन या फिर मोर देन वन आर्ग्यूमेंट, कि दो ऐसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं जो कि सपोर्ट करते हैं या फिर काउंटर करते हैं मेन प्रॉब्लम को, मेन पॉइंट को, तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड चेंज किया, पहले में बोला उसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर लाइकली टू एग्री विद, इसका मतलब क्या निकला, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सिर्फ यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे एक ही व्यू पॉइंट है जो कि डिस्कशन कर रहा है मेन प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर्स मोर लाइकली टू मोस्ट स्ट्रांगली एग्री विद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक से ज्यादा सपोर्ट या फिर सपोर्टिव या फिर कॉन्ट्राडिक्ट वाले आर्ग्यूमेंट हैं जो कि मेन प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विद, फर्स्ट that we will only understand bats if we understand the chemical process behind biological equation. Okay, B option, that the experiences of other species are not worth wondering about since our sense organs are different from theirs. C option, that we cannot understand the experience of other species by relying solely upon our own organ of perception. D option, that the experience of other species are not worth wondering about since we have our own experience to worry about. तो इसका आंसर आप सॉल्व करो, इसका आंसर है सी। सी ऑप्शन क्या बोलता है, दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ अनदर स्पीसीज बाय रिलाइंग सोलिली अपॉन आवर ओन ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। ओके, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विद। सी ऑप्शन था दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्पीसीज बाय रिलाइंग सोलिली अपॉन आवर ओन ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, कि हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से सामने वाले के एक्सपीरियंस को जज नहीं कर सकते, देख समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें ऑथर ने सेकंड पैराग्राफ में जो आप पैसेज खोलना साथ में, पैसेज जब खोलोगे तो सेकंड पैराग्राफ में ऑथर ने एक चीज बोली है कि बैट्स का परसेप्शन एंड सेंसरी ऑर्गन्स आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स and we must consider whether any method will permit us to explorate to the inner life of the bat from our own case, and if not, what alternative methods there may be for understanding the notion. The author suggests that we do not understand that the experience of sensing the world through equation, not that we do not understand how equation work. तो ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन था, ए ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए दे रखा है दैट वी विल नॉट अंडरस्टैंड बैट इफ वी अंडरस्टैंड द केमिकल प्रोसेस बिहाइंड बायोलॉजिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोग इक्वेशन को समझते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑथर ने जो पैराग्राफ में बोला है वो ये बोला है कि हम लोग इक्वेशन से वर्ल्ड को नहीं समझ सकते, हमारे सेंसिंग ऑर्गन इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग वर्ल्ड को इक्वेशन से समझ पाए। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या बोला, हम लोग बायोलॉजिकल इक्वेशन को समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोगों को इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या होती है, और हम लोग उसके साइंटिफिक फैक्ट को समझते हैं, बट वी कांट इमेजिन वर्ल्ड थ्रू इक्वेशन। ठीक है, और ऑथर ने क्या बोला है दैट वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेट वेज टू अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्पीसीज, नॉट वी शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। चीज बोली है कि हमें कुछ और वेज ढूंढने होंगे जिससे हम लोग जो अलग स्पीसीज हैं उनके एक्सपीरियंस को समझ पाए, जबकि ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं कि हमें उनको समझने का ट्राई ही नहीं करना चाहिए, हम लोग उनको समझने का ट्राई कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ऑथर ने क्या बोला है कि हम लोगों को कोई ऑल्टरनेट वेज ढूंढने चाहिए जिससे हम लोग बैट्स के एक्सपीरियंस को या फिर किसी जो दूसरे स्पीसीज हैं उनके एक्सपीरियंस को समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली टू एग्री विद ऐसे करके ऑप्शन आया, आपको ये चीज देखनी है, वही प्रैक्टिस आपको दोबारा से करनी है, अच्छे से करनी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर को चूज करने से पहले आपने सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने बताया था ना A-B-C, जो एक क्वेश्चन आया था हम लोगों ने पहले देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को लगा कि ए ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जब हम लोगों ने आगे के ऑप्शंस को पढ़ा तो हमें पता लगा कि नहीं, ए ऑप्शन सही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि पहला ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको माइनर डिफरेंसेस कुछ मिलेंगे ऑप्शंस में, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपको ऑप्शंस को वर्ड बाय वर्ड और बहुत ही अटेंशन से पढ़ना है, जितना अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका कोई भी वर्ड उसमें मिस ना हो और आप इजीली उसको आंसर को करेक्ट कर पाओ।
आपको ऑप्शंस को दो बार, अगर आपको ऑप्शन सारे इक्वल लग रहे हैं, लाइक सपोज इट होता है कई बार कि आपको ऑप्शंस पढ़ते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि यार कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, लाइक होता है कि वर्डिंग कई बार मैच करते हैं, तो हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ स्लाइट डिफरेंस होता है, तो आपको ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है और वो स्लाइट डिफरेंस को ढूंढना है, तो आप इजी वे में ऑप्शंस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक लास्ट एग्जांपल है, which of the following is most similar to the problem or questions the author discusses the passage above। मोस्ट सिमिलर इसमें से इसने सिचुएशंस दी हैं कि हमारी जो सिचुएशन, हमारा जो पैसेज है उसमें कौन सी सिचुएशन बेटर फिट होती है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक टू बी एन इंजीनियर। सेकेंड ऑप्शन, अ पर्सन ऑफ वन रेस विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक टू बी ए पर्सन ऑफ अनदर रेस। Third option, a citizen of India will not be able to understand what is like to be a citizen of Sri Lanka. Fourth option, a cricketer will not be able to understand what it is like to be a footballer. तो अगर हम लोग देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बिकॉज एक रेस का पर्सन दूसरी रेस के पर्सन के बारे में अच्छे से नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? बिकॉज ये इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक है, जस्ट लाइक ए पैसेज दैट अब हम लोग मतलब वन रेस, मतलब एक तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग ह्यूमंस हमारे अपोजिट स्पीसीज यानी बैट्स को हमारे परसेप्शन से नहीं समझ सकते, उनके एक्सपीरियंस को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो लाइक दिस अ पर्सन ऑफ रेस विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक टू बी अ पर्सन ऑफ अनदर रेस। ओके, तो अगर हम लोग इसको एलिमिनेट करें तो एक डॉक्टर है वो अपना प्रोफेशन चेंज करके इंजीनियर बन सकता है, एक बार उसको इंजीनियर की स्टडी करनी है और वो बीटेक करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। या फिर एक सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन है, अगर वो श्रीलंका की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो श्रीलंका के सिटीजन को भी एक्सपीरियंस कर लेगा आराम से। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन, अ क्रिकेटर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक टू फुटबॉलर। ये भी हो गया कि अगर एक क्रिकेटर है वो फुटबॉल भी सीख सकता है, लेकिन जो वन रेस का पर्सन है वो अनदर रेस के पर्सन के बारे में नहीं समझ सकता। अगर हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम लोग बैट्स को अपने तरीके से एक्सपीरियंस, उसके तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग बैट नहीं बन सकते। तो मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो बेसिकली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं पैसेज पढ़ने के लिए। आप जितना न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ते हैं उसमें से ही कई बार पैसेज आ जाता है, या फिर कई सारी बुक्स भी होती हैं, बुक्स से भी पैसेज आ जाता है। तो अब क्योंकि अब आप बुक्स तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, मैं न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने से आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो पैसेज तो वहां से भी आना है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से भी आ सकता है, तो आप वहां से पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर भी साथ में सेक्शन जो है करंट अफेयर का वो भी साथ में प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज जो मैं मेन चीज आपको बोल रहा हूँ, आपका 10th स्टैंडर्ड तक का ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप 10th स्टैंडर्ड तक का ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, वोकेबलरी अपनी अच्छी करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, बहुत इजी बुक है। वैसे एक रेन एंड मार्टिन भी बुक आती है, लेकिन आई थिंक सो अगर हम लोग हिंदी मीडियम, मैंने इससे पहले बोला था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वर्ड पावर मेड इजी इंडियन ऑथर है, इसीलिए अच्छी रहती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ग्रामर को सही करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आप प्लीज इसको लेके रख लीजिएगा, बहुत सस्ती भी होती है और बहुत अच्छी भी बुक है, इसको लीजिएगा। इसमें से ग्रामर को सॉल्व करो। आपके पास पूरा, अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो पूरा एक साल है, एक साल किसी भी चीज को पढ़ने के लिए बहुत होता है। तो प्लीज आप इसको पढ़ो, सॉल्व करो, ग्रामर को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो बार बार। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, मैगजीन्स के आर्टिकल्स हो गए, उनको पढ़ो। कुछ अगर आपको बुक पढ़नी है, अपने कुछ भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं नॉर्मली, अगर आप अपने स्टैंडर्ड की 12th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हो तो आप उनको पढ़ो, हो सकता है उसमें से भी पैसेज आ सकता है। ठीक है, ये सब चीज आपको पढ़नी है। अब सेकंड चीज क्या है, कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप कोई भी एक पैसेज पढ़ रहे हो, लाइक सपोज दैट अगर आप पढ़ रहे हो कि यू कैन इवन डाउनलोड अ फ्री डिक्शनरी ऐप सो दैट यू कैन हेल्प ऑलवेज हैव अ डिक्शनरी हैंडी ऑन योर फोन। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि डाउनलोड का मतलब क्या होता है, तो आप प्लीज इस सेंटेंस को पढ़ के रुक जाओ और डाउनलोड का मीनिंग सर्च करो,
एंड देन डाउनलोड को आप जहां आपको लिखना है, आप अपना एक वोकेबलरी का मैं आपको बोल रहा हूँ एक अलग से कॉपी बनाओ और उसमें सब लिखते जाओ, जिससे एक बोलते हैं ना कि लिखा हुआ सबसे जल्दी याद होता है, तो आप उसको लिखते जाओ। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आप मीनिंग्स को अच्छे से समझ पाओगे। ये आपको क्यों हेल्प करेगी, एक सेक्शन होता है जो मैंने आपको बताया था वोकेबलरी वाला, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वर्ड मीनिंग पूछ सकता है वो, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। थर्ड चीज है, आप एक टाइम लिमिट सेट करके मॉक पेपर्स को रेगुलरली सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये तो हर सब्जेक्ट में ये चीज लागू होती है। अपना टाइम लिमिट सेट करो और मॉक पेपर्स को स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन सीरीज, वेब सीरीज वगैरह होती हैं ना, वहां पे आपको ये पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे, मॉक पेपर। वहां पे स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 पेपर्स आपको मॉक टेस्ट फ्री रहता है, ठीक है। कई सारी साइट्स हैं जहाँ पे इंग्लिश के सब्जेक्ट वाइज पेपर्स दिए हुए हैं, और वैसे भी तो इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश को कहीं से भी जाके सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप ग्रामर वाले क्वेश्चंस को भी, जनरली होता है ना एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, तो आपको तो ग्रामर भी अच्छी हो जानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो और पेपर को टाइम लिमिट लगाओ और सेट करो। कई सारे पेपर्स हैं क्लैट के, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो गया, तो मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करने के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर में आप एक काम कर सकते हो कि जो लास्ट ईयर के पेपर में पैसेज दिए हुए हैं, आप उनको निकालो, उनको पढ़ो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला था ना कि अपना 1-1.5 घंटा इंग्लिश के लिए बैठो आराम से, और पैसेज पे पैसेज सॉल्व करना स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप पढ़ना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। पक्का है आपका कई बार 0 नंबर आएंगे, मतलब आपका हर क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पैसेज का मतलब समझ में आएगा कि सॉल्व कैसे करना है। मैं कितना भी आपको पढ़ा लूं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद से नहीं करोगे ना, मैं आपको नहीं समझा सकता कुछ भी। तो आज मैं समझता हूँ कि जब आपने पूरा पढ़ा होगा आपको, तो स्टार्टिंग के कई लोगों की तो स्टार्टिंग से सब कुछ ऊपर गया होगा। तो सिर्फ जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, जब आप चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। आप ऑनलाइन बुक्स मंगवा लो, तो आपको बुक्स से भी पैसे सॉल्व करने को मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। बस प्रैक्टिस। मैं सबसे अच्छी चीज बोल रहा हूँ, दिन में अगर आप 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो, तो 12 घंटे में से 7 घंटे प्रैक्टिस करो, 5 घंटे पढ़ो, क्योंकि ये पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ही बना है। सो नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, आज से ही काम करना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को पढ़ रहे हो, जैसे इस वीडियो को देखते हो, नेक्स्ट आधे घंटे बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो, सर्च करो, है ना, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। अब अगर आपको जो मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनको लिखो, गूगल पे सर्च करो, सब कुछ मिलेगा। और बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ, जब आप वोकेबुलरी करोगे, तो जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जो आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है, उनको एक पेपर में उतारो, ठीक है, और सबको उतारते जाओ, ठीक है, और उनको हैंड टू हैंड सर्च करते जाओ, और उसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों साथ में लिखो, जिससे आपको दोनों चीज समझ में आएंगी कि कहाँ पे कैसे यूज होता है। गूगल में एक ऑप्शन दिया होता है नीचे, उसको यूज किया होता है, जो वर्ड आप मीनिंग होता है, जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो, उसको उसने यूज किया होता है। तो उस सेंटेंस को भी फॉर एग्जांपल आप नीचे अपनी बुक में लिखो, जिससे आपको लिखने पे याद रहेगा कि ये किस सेंस में यूज हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा वही प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज एंड एन अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज भी रहेगा। करंट अफेयर्स के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। सो नेक्स्ट वीक तक मैं ये वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने लोगों से शेयर कीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था, जितने ज़्यादा लोग मेरे को देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग पेपर्स को सॉल्व करेंगे और जितनी ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आएंगी, उतना ही ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा क्वेश्चन पेपर बनाने का, आपको पढ़ाने का, स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करने का। तो जितना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा। सो प्लीज़ कीप मोटिवेट टू मी टू कीप मोटिवेट योर सेल्फ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जितने बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, जितने भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट ले सकें, प्लीज़ उन तक इसको पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।